Hello students, this is Mukesh sir and today let us discuss about parallelogram law of addition. Basically, we are trying to emphasize on the topic that is very much integral to physics. Like vector is one of the fundamental thing to improve if you want to improve your physics. So, whenever you deal with vector quantities, like we have the force, angular momentum, or magnetic field, there are lots of quantity, displacement, velocity, position vector. Whenever you are going to deal with this quantity, you have to use the knowledge of vector. So vector becomes very integral while improving the overall the balance of physics. So let us discuss about parallelogram law of addition. Generally, from this law, we get to know the formula for to find the magnitude of the vector. So, I am discussing straight away parallelogram law of addition. Focus here. See, two vectors which are to be added together. I have drawn this vector. Suppose this vector is a vector, and another vector. This is vector b. These two vectors need to be added together and we have to find the resultant of this vector. इन दोनों को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगी we are interested in the magnitude of that vector. तो सबसे पहले जिन दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है उनको हमने क्या किया है, सेम इनिशियल पॉइंट से दोनों वेक्टर को, मतलब उनकी इनिशियल पॉइंट जो होगी वो कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होगी. तो यहाँ से हमने क्या किया, दो वेक्टर्स को इस तरह से अलाइन कर दिया है एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. सपोज दिस इज थीटा. ठीक है. नाउ resultant vector, suppose this is parallelogram law of addition. So we already know the properties of vector, that any vector can be shifted parallelly. ठीक है. तो exactly I am using this property. तो ये वाली वेक्टर को, वेक्टर a को, ये हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया. So if this is vector a, this also becomes vector a. Just I have shifted this vector. Now if this is vector b, this is also vector b. Now this comes out to be parallelogram. आमने सामने की साइड जो है they are parallel to each other. So we have to find the resultant. So resultant vector is addition of this vector a and vector b, and this is the resultant vector. Suppose this is the resultant vector and I am representing it with r vector. This is the resultant vector of vector a and vector b. We can write here in this vector form like this: vector a plus vector b is equals to resultant vector. This resultant vector is the summation of vector a and vector b. So we have to find the magnitude of this vector, vector r. So from here, from this diagram, we can clearly see that this resultant vector is diagonal of this parallelogram. So from Pythagoras theorem we can find the value of this r. So first of all, if this is theta, look here, तो हमने क्या किया, एक इस लाइन को, this is vector a, so vector a को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, ये एक्सटेंड कर दिया and I am drawing a parallel to that line on vector a. This is the vector drawn, perpendicular drawn on vector a. Now this is vector b, because if this is vector b, this is also vector b, and if this is theta, so this also becomes theta, corresponding angle. So if this is theta, this is also theta, and if this is vector, you can consider this triangle. So this is the triangle exactly. This is vector b and this is the perpendicular we have drawn. This is the angle theta, this is vector b, magnitude of vector b is b. So if you need to find this, so this becomes perpendicular, and perpendicular is basically hypotenuse into sin theta. So this becomes b sin theta, and this is base, angle के साथ वाली साइड base होती है, तो यहाँ पे ये जो base है, it becomes hypotenuse into cos theta.
So we got the value of this, that is b cos theta, and this is b sin theta. Okay. Now, according to Pythagoras theorem, suppose I am naming this triangle O, X and Y. In OXY triangle, you can clearly see this OX is the hypotenuse and this XY is the perpendicular and OY is the base. So according to Pythagoras theorem, I am writing here, according to Pythagoras theorem, R square is equals to R square, this is R, magnitude of vector R, that is R, and this is the base, and base becomes A plus B cos theta. So this is A plus B cos theta, this is square of this, plus now this is the perpendicular which is B sin theta, so this becomes B sin theta और इसका स्क्वायर कर दिया. So this is done in accordance with Pythagoras theorem. So यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली ये हो जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर जाएगी और ये तो 10 इसका स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस कम्स आउट टू बी r स्क्वायर और ये हो जाएगी a स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी 2ab cos थीटा. सो दिस इज जस्ट आई हैव ओपनड दिस फॉर, ये वाला ब्रैकेट में जो वैल्यू थी उसको हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक किया हुआ है. ठीक है, और दिस कम्स आउट टू बी b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. सो दिस इज द वैल्यू. अब इसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर देते हैं. दिस इज b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. b स्क्वायर कॉमन लेते ही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. सो दिस कम्स आउट टू बी r स्क्वायर a स्क्वायर हो गई और ये हो गई क्या b स्क्वायर और साथ में दिस इज 2ab cos थीटा. ये आ गई r स्क्वायर की वैल्यू. तो वी हैव टू find the value of r. So this comes out to be root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So what is the theta? Theta is the angle between vector a and b, मतलब जिनके बीच की रिजल्टेंट निकालनी है, that is the angle between them, and a and b is the magnitude of this vector. Suppose this vector a is like this vector a is 2i cap plus 3j cap. So we can find magnitude from this vector component के फॉर्म में गिवन है. तो मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड यहाँ लिखी हुई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. फिर इससे आगे चल के जो भी वैल्यू हम फीड करते जाएंगे एग्जैक्टली विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. ठीक है. सो वन मोर थिंग, इफ you take this formula forward, this becomes r equals to a square plus b square plus 2ab cos theta. Suppose in most of the cases two vectors which are equal in magnitude, so I am applying the condition here. अगर ये vector a की magnitude mod ले लिया हमने और vector b की magnitude के equal है, if they are equal to each other, so exactly ये दोनों सिचुएशन को यहाँ रख देते हैं फॉर्मूले में. सो दिस r comes out to be under root a square plus a square. This is 2a square and this also comes out to be 2a square cos theta. और यहाँ से 2a square कॉमन ले लेते हैं, तो 2a square कॉमन ले लिया तो दिस comes out to be 1 plus cos theta. ठीक है, और ये अभी रूट में है. सो this is the resultant. और यहाँ से 1 plus cos theta is the trigonometric function. So 1 plus cos theta, we will use this to be 2 cos square theta by 2. ठीक है, we need to learn this. So exactly use this 1 plus cos theta, we can write this one. So this is r is equals to 2a square into 2 cos square
थीटा बाई 2, 2 2 4, तो ये रूट में है पूरा, तो ये 4 हो जाएगी, 4 की रूट बाहर आ जाएगी 2, और ए स्क्वायर, ए आ गई रूट से बाहर, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो ये आ गई कॉस थीटा बाई 2। दिस इज द रिजल्टेंट। एक और फॉर्मूला आ गई है रिजल्टेंट की, बट दिस इज स्ट्रिक्टली used for this condition. If this condition prevails, we can use this formula, which is both vectors should have equal magnitude. Now this is the formula we are going to use for the magnitude, resultant की magnitude निकालने के लिए. So we have, this is the general formula. अगर vectors के magnitude equal नहीं होंगे तो we will go for that formula, और अगर equal है so we should straightforward go for this formula and save our time. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, यहां से अब देखो, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. सो रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा. सपोज दिस एंगल इज द अल्फा विथ वेक्टर ए. And in case if you are interested in finding the value of theta, so we can also find theta from this triangle only. OXY triangle में देख सकते हैं कि ये अल्फा जो है, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल सकते हैं. परपेंडिकुलर कितनी है, b sin थीटा, बेस कितनी है, a प्लस b cos थीटा. तो tan अल्फा tan थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहां से tan जो अल्फा हो जाएगी, जो क्या, तो यहां से tan अल्फा हो जाएगी इन केस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. ठीक है ना, वो ध्यान रखना है. डायग्राम हैज टू बी की हियर. तो tan अल्फा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. दिस इज द entire vector. This is the vector a plus b cos theta. So this is the tan alpha. So if you have to find alpha, so this becomes tan inverse b sin theta upon a plus b cos theta. और ये देख सकते हैं, अगर पूछता है क्वेश्चन में कि रिजल्टेंट वेक्टर बी से कितनी एंगल बनाती है, तो दिस हैज टू बी द एंगल एंड दैट इज बीटा. सपोज सो अल्फा प्लस बीटा हैज टू बी थीटा. तो अगर यहां से हम अल्फा निकाल लेंगे तो सक्सेसफुली वी कैन यूज दिस इक्वेशन. अल्फा प्लस बीटा इज थीटा. तो अल्फा अगर एक बार निकल जाती है तो बीटा क्या हो जाएगी, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगी. तो डायरेक्टली जो है यहां से हम अल्फा भी निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड बीटा एज वेल, बट वी हैव टू मेनली फोकस की एंगल जो है अल्फा बीटा या थीटा जो है वो किनके बीच की है. सो थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स जिनकी रिजल्टेंट निकालनी है. और एक बार रिजल्टेंट आ गई है which is one of the diagonal of this parallelogram. ठीक है, this is the parallelogram. So now that resultant vector is making an angle alpha with vector a and beta with vector b, और alpha plus beta is going to be theta. So यहाँ से हम कोई भी चीज जनरल फॉर्मूला डिस्कस कर सकते हैं, और यहाँ से जो है ये जनरल फॉर्मूला, और फिर उसके बाद ये स्पेशल केस भी ध्यान रखेंगे, बिकॉज व्हेन वी डील इलेक्ट्रोस्टैट, तो इलेक्ट्रोस्टैट में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हेन वी डिस्कस, सो लॉट्स ऑफ फोर्सेस कम्स आउट टू बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो वहां पे आसानी से इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं दो वेक्टर की. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. ठीक है, नाउ इन दिस सेगमेंट ओनली इफ दिस इज वेक्टर बी, ध्यान सुनेंगे, मतलब यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो बहुत थोड़ा से कॉमन सेंस से सब्सट्रैक्शन वाले फॉर्मूले को भी खुद परसीव कर सकते हैं. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू इनसाइट कैसे हो सकता है. इफ दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को अगर 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, सो इफ दिस इज वेक्टर बी, दिस हैज टू बी माइनस ऑफ वेक्टर बी. एंड इफ दिस इज द एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, बता दो ये वाली एंगल क्या हो जाएगी. एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितनी होती है, 180 डिग्री. सो इफ दिस इज थीटा, दिस कम्स आउट टू बी 180 माइनस थीटा. यहां पे हमने वेक्टर ए और बी के बीच में एडिशन किया था, तो वी हैड टेकन दिस एंगल बिटवीन देम. अब यहां पे वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को ऐड करना. दिस सब्सट्रैक्शन क्या है, ए से बी को माइनस करना बोल सकते हैं, या उसी को बोल सकते हैं ए में प्लस करना माइनस बी को. बोथ आर सेम थिंग. तो एग्जैक्टली उसी चीज को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ. तो ये माइनस बी वेक्टर हो गए. अब यहाँ पे एंगल हो गए 180 माइनस थीटा. तो
एग्जैक्टली जो है यू हैव टू यूज दिस सेम फॉर्मूला। बस यहाँ पे क्या हमने किया है, यहाँ पे जो है रखा हुआ है जनरल फॉर्मूला आया हुआ है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के जगह पे क्या रख देंगे 180 माइनस थीटा। माइनस के बारे में वरी नहीं करेंगे, माइनस जो है वो जो है डायरेक्शन एसोसिएट कर रही है, ठीक है, तो उसके बारे में सोचना नहीं है, बस एंगल देखना है। तो यहाँ पे जब जैसे एंगल रखेंगे cos 180 माइनस थीटा तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस cos थीटा। cos 80 माइनस थीटा जानते हैं सभी लोग, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो सब्सट्रैक्शन के लिए जो है ना, जो फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो फॉर्मूला सब्सट्रैक्शन के लिए डायरेक्टली वो क्या आ जाएगी, यहाँ से r इज इक्वल टू रिजल्टेंट के लिए वो आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab cos 180 माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाएगी माइनस cos थीटा। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये 2ab cos और ये हो जाएगी 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं ये आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो आई थिंक इस चीज को एसोसिएट कर लिए होंगे कि सब्सट्रैक्शन वाले फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आती है, माइनस आती है, और जो एडिशन वाली फॉर्मूला होती है रिजल्टेंट की उसमें क्या आती है, प्लस आती है। इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं, बट यू शुड नो हाउ इट कम्स और कैसे ये चीज हो रही है। लास्ट थिंग, दिस इज द डायगोनल व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर एडिशन ऑफ दिस टू। मतलब यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो वेक्टर ए और वेक्टर बी, दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर बी, इनकी रिजल्टेंट जो होगी वो क्या होगी, ये कुछ ऐसी हो जाएगी। और ये वाली वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे ये पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ ऐसे, और पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो क्लियरली देख सकते हैं कि एक डायगोनल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर एडिशन को, और जो दूसरी डायगोनल है विच हैज टू बी पैरेलल टू दिस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वेक्टर सब्सट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली। वेरी इंपॉर्टेंट, जेई में एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है एग्जैक्टली यूजिंग दिस थिंग। तो यहाँ पे ये वाली जो हो जाएगी, मैं इसको इस वाले वेक्टर को बोल दे रहा हूँ r डैश वेक्टर, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वेक्टर a माइनस ऑफ वेक्टर b। तो इसको मैंने बोल दिया r डैश वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में एक डायगोनल जो दोनों वेक्टर के कॉमन टेल से, कॉमन पॉइंट से निकलती है वो वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करती है, और जो दूसरी डायगोनल है in the parallelogram which is other diagonal which represents the vector subtraction, very important, ठीक है। तो this is all about parallelogram law of addition, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, थैंक यू।